وہ لوگ مجھے فیلڈ میں کہیں نظر نہیں آئے، مجھے پنجاب کی پی ڈی ایم اے کا کوئی ٹینٹ کہیں نظر نہیں آیا، اور ان کے لوگ پتہ نہیں کہاں سے جرأت کر لیتے ہیں کہ ان کی خاتون سابقہ ایم ایل اے جس کو بھی حال ہی میں ڈی نوٹیفائی کیا گیا، شندانہ گلزار نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آپ پاکستان کو امداد نہ دیں، پاکستان کو دی ہوئی امداد متاثرین تک نہیں پہنچے گی۔ یعنی یہ قدرتی آفت آئی ہے، ہم قوم کو یکجا کر رہے ہیں، متاثرین کی بحالی کا کام کر رہے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل فورمز پہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی امداد روک رہے ہیں۔ یہ کوئی اچنبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی، یہ وہی لوگ ہیں جو آج ملک دشمن اور بھارت کا بیانیہ اس ملک میں چلا رہے ہیں، اور ایک جلسے پر 25 سے 30 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے، 25 سے 30 کروڑ روپیہ، اور جلسے کو پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ایسا کسی ایک بیوہ جو بلوچستان میں بیٹھی ہے اس کو راشن دینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ پیسہ جو ایک یتیم بچہ سندھ میں بیٹھا ہے اس کے خاندان کو خیمہ دینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ پیسہ پنجاب میں جو ایک خاندان دریائے سندھ کے کنارے بیٹھا ہے اس کو طبی امداد دینے میں استعمال نہیں ہو سکتا؟ پنجاب کے حکمران بے حس ہو چکے ہیں، جلسے کے انتظامات کا جائزہ لینے تو وزیر اعلیٰ خود پہنچتے ہیں اور اپنے ہی جلسے کو ریاست مخالف بیانیے کے لیے استعمال کرواتے ہیں، اور عوام کی مدد کے لیے پنجاب حکومت تیار نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ہم پنجاب میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ سیلاب متاثرین تک پہنچنا، ان کی امداد کرنا، ان کی بحالی کے لیے کاوش کرنا، مگر اگر حکومت نام کی پنجاب میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو جس طرح یہ سیلاب آیا ہے ان حکمرانوں کو بھی، پنجاب کے حکمرانوں کو یہ بہا کے لے جائے گا۔ عوامی خدمت اور متاثرین کی امداد یہ اپنا فرض ہی نہیں سمجھتے، لوٹ مار میں مصروف ہیں، اور یہ جو ملک دشمن بیانیہ ہے یہ کبھی بھارت نے بھی جرأت نہیں کی کہ وہ پاک فوج اور سپاہ سالار کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کریں۔ پاک فوج کے خلاف سیاسی سٹیج سے جو نعرے بازی کی جا رہی ہے، جو بیانیہ دیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے جلسوں میں عوام نے جانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جیلم کا جلسہ ایک ناکام جلسہ ہوا، یہ اب کھلے میدانوں کی بجائے اسٹیڈیمز کے اندر جلسے کرنے پر مجبور ہیں کہ جہاں پہ 4 دیواری ہو، جہاں کی کیپیسٹی 18-20 ہزار سے اوپر نہ ہو۔ اور جو کل پشاور میں فلاپ جلسہ ہوا، ان کے اپنے ترجمان صفائیاں دے رہے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے لوگ جلسے میں نہیں آ سکے۔ سیلاب کی وجہ سے لوگ جلسے میں نہیں آئے، لوگ جلسے میں اس لیے نہیں آئے کہ آپ پاکستان کی فوج کو وہاں پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف بیانات دیتے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف آپ تقریریں کرتے ہیں، اس لیے آپ کے جلسوں میں لوگوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اور یہ جس ریاست اور فوج مخالف بیانیے پر عمران نیازی عمل پیرا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اپنی چوری کو بچانا۔ توشہ خانہ کے جو تحفے لیے گئے، انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے وہ تحفے بیچے، جو رشوت میں ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں لی گئی، جو چینی اور آٹا اسکینڈل میں اربوں روپے کمائے گئے، جو فورن فنڈنگ سے لیے گئے اربوں روپے، اب سمجھ آتی ہے کہ بھارتیوں سے اور یہودیوں سے جو فورن فنڈنگ میں پیسے آئے ہیں ان کو کیا محبت ہے تحریک انصاف سے، اور وہ تحریک انصاف کو پیسے کیوں دیں گے ایک سیاسی جماعت کو۔ یہودیوں نے اور بھارتیوں نے مختلف ممالک سے جو پیسے فورن فنڈنگ میں عمران نیازی صاحب کو بھجوائے ہیں،
वो इसीलिए भिजवाए थे कि आज फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानियां इस मुल्क के अंदर उसको परवान चढ़ाया जाए। एक ऐसे वक्त में जब पाक फौज सैलाब मुतासरीन इमदाद और बहाली में मसरूफ है, सिपाही सालार के खिलाफ बात करना, आर्मी की टॉप ब्रास के खिलाफ बात करना, उनको मुतनाज़ा बनाना सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, ये इंतहाई नीच हरकत है। और ये अपने लिए सिर्फ सियासत चमकाने का जरिया है कि मैं किसी तरीके से मेरी चोरी पर पर्दा डल जाए। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। एक ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जिसको झूठ पर पाला गया है, जिसकी तरबियत बद तहजीबी पर की गई है। और ये मेरे हवाले से भी एक झूठी खबर चलाई गई कि मैंने हंसने पे 4 नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया। तो ये हम फाशिस्ट लोग नहीं हैं। अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ किसी पब्लिक प्लेस पर हो और आप नारा लगाएं और हुल्लड़बाजी करें और उस पर कार्रवाई पुलिस अपने ताई करे शिकायत मौसूल होने पर, तो क्या कोई नामुनासिब बात है? मेरे इल्म में जब आया, मैंने बावजूद इस बात के कि मैं अपनी फैमिली के साथ था और हुल्लड़बाजी की गई, मैंने पुलिस को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शायद गलत किया होगा, मगर ये फवाद चौधरी साहब जो इब्नुल वक्त, और मैं अक्सर कहता हूं कि डब्बू एक ही अब्बू, ये रोज अपना वालिद बदलते हैं, सियासी कायद बदलते हैं और उसकी मोहब्बत में इतना आगे चले जाते हैं कि जब दूसरी सियासी जमात को गाली देते हैं तो चंद साल बाद उन्हीं की सफों में शामिल होते हैं। इनके हर जमात में राब्ते हैं, हमारी जमात में भी इनके राब्ते हैं और रोजाना की बुनियादों पर इनके राब्ते हैं, इनके पीपल्स पार्टी में भी राब्ते हैं। और इनका मकसद सिर्फ यह है कि इमरान खान की नैया जो तकरीबन डूब चुकी है उसको मुकम्मल तौर पर डबो दिया जाए और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान को गलत मशवरे देते हैं और ये उसकी तबाही का सबब जब बनेगा, सबसे बड़ा सबब फवाद चौधरी खुद होंगे। तो ये झूठी खबरें फैलाना, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी फवाद चौधरी का पुराना काम है। मैं चाहता तो मैं कानून अपने हाथ में भी ले सकता था। मौके पर मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद था और जो वाकया पेश आया, मैं चाहता उसका रद्द-ए-अमल खुद देता, मगर मैंने ये मुनासिब नहीं जाना। मकामी सिक्योरिटी ने पुलिस को इतला दी, जिसपे पुलिस ने कार्रवाई की और मैंने उसके बाद कार्रवाई रुकवा दी। और इनको बड़ा दर्द उठ रहा है, मरोड़ उठ रहा है उन 4 लड़कों का। तो क्या सैलाब मुतासरीन का कोई दर्द नहीं है? इनका कोई एक रहनुमा सैलाब में निकला हो, ये जहां जाते हैं जलसा करने, उसके साथ कैंप लगवाते हैं और वहां पे खाने की प्लेटें रख के फोटो सेशन करके वापस आ जाते हैं। गजब खुदा का कि इतनी बड़ी कुदरती आफत है और आपको सियासत से फुर्सत नहीं है। आप इस कुदरती आफत के दौरान भी, आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि DGISPR का जो रद्द अमल है इमरान खान साहब की तकरीर पर, वो जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से बढ़ के है, ओवर रिएक्शन है। यानी आप पाक फौज पर हमला करें, पाक फौज के खिलाफ बयान दें, रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाएं और उसके बाद DGISPR के बयान की भी मजम्मत करें। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि जो इदारा इस मुल्क की दिफा पर मामूर है, जो इदारा इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत कर रहा है, जो इदारा सैलाब में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, आप सैलाब के दौरान भी ये गंदी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पैसे आप बैरून मुल्क से लेते हैं और बैनुल अक़वामी साजिश का ताना हमें देते हैं। ये है बैनुल अक़वामी साजिश जो आप बाहर से पैसा लेके फौज को गाली दे रहे हैं। बस कर दें, वरना आपका घरों से बाहर निकलना मुश्किल होगा। ये अवाम आपका गिरेबान पकड़ेंगे कि आपने किस मुंह से और किस जबान से पाक फौज के खिलाफ बयान दिया है या टॉप ब्रास के खिलाफ बयान दिया है और उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान दुश्मनी है। कोई भी
मुहब्बे वतन शख्स इस तरह की तकारीर और बयान नहीं दे सकता। और इसकी अकल देखें कि सैलाबज़दा इलाकों में जाके कहता है कि सैलाब के आज आपको फवायद बताने आया हूं कि अगली दफा फसल अच्छी होगी, खुदा का खौफ करें। जाके देखें कई 100 एकड़ खड़ी कपास की फसल तबाह हो गई है, गन्ना तबाह हो गया है, लोगों की फसलें, लोगों के माल मवेशी बह गए हैं, और आप कहते हैं अगली दफा गंदम अच्छी होगी। आप में अकल नहीं है? जो शख्स शलवार उल्टी पहन के तकरीर कर सकता है उसकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। आप उसकी अकल का अंदाजा लगाएं कि वो सैलाब मुतासरीन को बता रहा है कि इसके फवायद क्या है। जिसका घर लुट गया, जिसका घर बह गया, वो उल्टी शलवार पहनकर नेशनल टेलीविजन पर पाकिस्तान की फौज को ललकार रहा है। जिसको शलवार पहननी नहीं आती उसने क्या सियासत करनी और क्या मुल्क को चलाना और क्या सैलाब मुतासरीन की इमदाद करनी। चोरों का एक टोला है जिसने इस मुल्क को 4 साल बेदर्दी से लूटा है। क्यों नहीं वापस बुलाते फराज साहिबा को? क्यों नहीं जवाब देते तोशा खाना का? और जो फॉरेन फंडिंग का फैसला आपके खिलाफ आया है उसमें एक एक अकाउंट, एक एक पाई जो सदकात, अतियात, ज़कात के पैसे थे वो आपने लूटे। कोई सदके का पैसा, ज़कात का पैसा, अतिये का पैसा भी लूटता है। बदतरीन चोर होता है जो ये काम करता है। और उसके साथ साथ आजकल इनको सहूलतकारी हासिल है परवेज इलाही की और पंजाब हुकूमत की। ये इमरान परवेज गठजोड़ है जो मुल्क मुखालिफ बयानिए की बुनियाद बन रहा है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ उनको पंजाब हुकूमत से मिल रहा है और पंजाब हुकूमत ही है। ये IMF का लेटर, ये तो पंजाब हुकूमत ने लिख दिया था, वो तो सेक्रेटरी फाइनेंस ने और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम ये लेटर नहीं भेजेंगे। ये पाकिस्तान के फर्शनास अफसर हैं जिन्होंने इनका रास्ता रोका, वरना इमरान खान की हिदायत आ गई थी। तो ये मोनिस इलाही इमरान खान के हाथ में आला कार बना हुआ है और इमरान खान को मजीद तकवीयत दे रहा है पंजाब से कि वो इस मुल्क दुश्मन बयानिए को मजीद मजबूत करे। मगर हम इंशाअल्लाह इस मुल्क का दफा करेंगे, इस मुल्क की अफवाज का दफा करेंगे। सैलाब मुतासिरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इमरान